Yes, sir. I put on group. I forwarded to everybody. Share the link. So, hello, how are you all? We'll be starting with this great seminar. So, before starting, I want to say something about IIBM Institute of Business Management. They are doing a great thing, providing online education and different certification courses to the masses. And they have been doing this from 2008. So, it's a great pleasure to be associated with IIBM. And they are providing these certifications in digital marketing, Six Sigma, and other modules in this regard. So which is great and terrific performance by IIBM. So I'll be sharing my screen and it will be an interactive session. So you are able to hear me, all of you. You're able to listen me? Yeah. Listen to me? Yeah, sir. Yeah. And my video is also visible? Yeah. So now I'll be sharing my screen and just let me know if it is visible or not. Okay? Yeah. Okay, sir. So are you able to see my screen now? Yeah. Yes, sir. 1 second. Yeah, just. So starting with this amazing seminar, which is online, this is organized by IIBM Institute of Business Management. So before starting, I would like to know that what are your backgrounds, like what are your names, and to be familiar what you do and in which course you are. So starting one by one, anyone can take this initiative and start. Yes, sir. I myself, Nilesh. Okay. Okay, sir. Thanks, sir. Nice to meet you. I myself, Nilesh Joshi. Okay. I am. I did my PG. I did BE and ME, PG, ME in computer engineering from Pune University. Great. Right now, I'm pursuing the master program in data science course. Okay, great. Thank you, Nilesh. Thank you, Next sir. person, Thank you. please. Thank you, sir. We have Shweta as well. Yeah, please go ahead. Shweta? Manit? Yes, Yeah, please tell me about yourself and in which course you are and what's your name, where are you from? hi sir, I am Shweta Singh. I passed integrated MSc from NIT Rourkela in 2019. Now, after that, I worked as a project trainee in Niger, Bhubaneswar for 6 months. And now I am Okay. pursuing the MPBA course in IIBM. Great. Amazing. So next, please. Next person, please. Hello, sir. One second. Yeah, please. Now, please tell me. Can you hear me, sir? Yeah, definitely. This is Sabah Akram, sir. I am from Patna, Bihar. I have completed a Masters of Science in Banking and Financial Analytics from Jamia Millia Islamia, New Delhi, sir. Right now, I am pursuing PG program in data science, and I started in July and almost about to complete the session. And it was a very good review from my side about the IIBM. The whole family is so much cooperative, and every one of the counselors and those who share the class links are very much cooperative. And the placement coordinator Devendra sir, we also talked. He is also very cooperative. Yes, Okay. sir. Great. Thank you. Manit, please, your turn.
Otherwise, I'll be starting with my presentation, what I have prepared for you. So before starting, I want to know one thing that like it will be seen in this PPT itself. You are able to see my screen now? Yes, sir. Yes. Yeah. So topics to be covered in this presentation will be why lion is the king of the jungle. Second is power of focus. Do you think that focus is really very needed in all the things what you will be doing in your life? Yes, sir. It will be a two-way communication. I'll be asking some sort of questions in the between as well, and you will be answering. So it will be an interactive sort of session. Okay. Yes, sir. So like how to be self-motivated and top 10 tips and tricks to speak English fluently. I hope that you all is unwilling to speak English fluently, but somehow some sort of hindrances or obstacles come and you're not able to speak in English properly, isn't it? Yeah. So I'll be helping you out to provide you those tips and tricks by which you can improve your fluency level in English language. So shall we start with this amazing presentation? So Yeah. starting with this amazing quote, nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Isn't it? All you agree on this, that everything is possible in this word. Yes. Absolutely. Yeah. So do you make goals in your life? Do you have any? कोई भी तरीके का goal, educational या for getting job or for any personal goals as well, that I want to buy this, buy that. I hope you all must, isn't it? So आप goals के बारे में बताएंगे कुछ अपने कि what are your goals in life? Hello? Yes, sir. Yeah. Any sort of goals you are having right now? Means educational goals or in Education. our career goals. Okay, career goals. I said the career goals means I had to work as a business analyst or data analyst with sound business analyst or sound. I had to work as a sound business analyst or sound data analyst in the field, and I had to enjoy the not for salary also, sir. I had to enjoy the work. I had to enjoy my domain, and I had to actually the research is my background actually. So I had to do. I like to do research. I had to invent the. Means I like to invent the number of things. Yeah, please. Great. So now you are having your goals in your life. So now I'll be telling you how goals are very important in your life. If you are not having any goals in your life, you will reach nowhere. एक कहानी के थ्रू बताता हूँ. एक बार एक बहुत लंबी लाइन लग रही थी. You all understand English or Hindi as well? Both. Hindi as well. Hindi is comfortable with all of you? Yes, sir. Yes. So एक बार बहुत लंबी लाइन लग रही थी टिकट के लिए, टिकट काउंटर पे. सो एक लड़का लगा हुआ था लाइन में. हाफ एन आवर में, आधे घंटे में नंबर आ रहा था उसका, मतलब बहुत टाइम बाद नंबर आना था. सो वो आधे घंटे तक उस लाइन में खड़ा रहा. उसके बाद जब वो टिकट काउंटर पे पहुंचा, सो उसने जो टिकट दे रहा था उससे कहा कि टिकट दे दो. तो टिकट काउंटर वाले ने पूछा कि कहाँ की टिकट दो, मतलब आपका गोल कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, आपको जाना कहाँ है. सो जो लड़का लाइन में लगा हुआ था उसने कहा कहीं की भी टिकट दे दो. सो टिकट काउंटर वाले ने कहा कि ऐसे कहीं की टिकट नहीं मिलती, और उसने कहीं की टिकट नहीं दी उसको. इसलिए लाइफ में अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ की टिकट लेनी है, सो आपको कोई कहीं की टिकट नहीं देगा और लाइफ में आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. सो गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. You have to know that what is your goal, what you want to become in your life. Otherwise, you will be clueless that what I want to become, isn't it? So moving further, one second. Yeah. So my question was from very starting, it was why lion is the king of the jungle. Can anyone? आपको पता तो है जंगल का जो राजा है वो किंग है, मतलब जो किंग है वो लायन है, बट ऐसा क्यों है? हमको ये तो Because he is बताया. not having. Yes, sir. Because he is not having any kind of fear.
ओके lion is अच्छा not having any kind of fear. ओके ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको कोई फियर नहीं है, तो आई बी स्टार्टिंग विद दिस। सो फर्स्ट इज जिराफ। मैं बताता हूँ कि कोई भी कहीं का भी किंग बनने के लिए कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आप ही इस चीज से अग्री तो करते होंगे। तो लंबाई भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किंग बनने का, इजंट इट? बट जिराफ सबसे लंबा होता है, बट वो किंग नहीं होता, इजंट इट? तो जो लंबाई की क्वालिटी है वो तो किंग बनने के लिए जरूरत नहीं है, इजंट इट? No. Yeah. So, and next is size. Elephant or rhino, like they are very massive, they're very big, but Yeah. जब भी वो जंगल के राजा नहीं होते, isn't it? Yeah. Yeah. Third is speed. अगर कोई बहुत तेज दौड़ रहा है तो ये भी क्वालिटी है उसकी कि उसको किंग बनाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, isn't it? Next is cleverness. सबसे क्लेवर फॉक्स, बट वो जंगल का राजा नहीं होता। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? चलो मैं बताता हूँ। Because या प्लीज गो अहेड। because lion is not as clever as that fox, but he's having the dashing kind of nature. He's not having any kind of fear, and he's focused on his goal. He's focused अच्छा, on his फोकस goal. तो वैसे चीता भी रहता है, जब वो अपना टारगेट की तरफ भागता है तो फोकस वो भी रहता है। Yeah. बट एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा शेर से, सो इट्स अ हाइपोथेसिस, वी आर इमेजिनिंग दिस, कि एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा शेर से कि शेर आप जंगल के राजा क्यों हैं? आपके अंदर ना तो कोई क्वालिटी है इस तरीके की, ना आप सबसे तेज दौड़ते हैं, ना आप सबसे लंबे हैं, ना आप सबसे साइज में सबसे बड़े हैं, बट आप जंगल के राजा क्यों हैं? तो शेर का जवाब जो था वो ये था कि मुझे लगता है मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है दैट यस आई कैन डू दिस इन माय लाइफ, I can assure you this, that you can achieve that in your life. I hope you all agree with this. So आगे इस PPT में, which is focus. So focus is very important in your life. So एक कहानी के थ्रू बताता हूँ। अच्छा, पांच पांडव थे, नाम पता है किसी को? Yes, sir. 5 पांडव थे। Yes, sir, absolutely. अच्छा, किसी को नेम्स पता है 5 के 5? नाम पता है ना? युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ग्रेट, अमेजिंग, सो अमेजिंग। सो एक बार क्या हुआ, जंगल में ये एक प्रैक्टिस होती है आर्चरी की, ठीक है? उसको करने गए द्रोणाचार्य के साथ। तो जब एक बार गए वो, तो चिड़िया बैठी हुई थी एक पेड़ पर, और उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि एक एक करके आइए, धनुष जो है, जो बाण है उसे उठाइए और इस पे निशाना लगाइए, इस पे टारगेट पर, चिड़िया की आंख पर आपको तीर मारना है। सो स्टार्टिंग विद नकुल, वो आए, उन्होंने पूछा जो गुरुजी थे उन्होंने कि आपको क्या दिख रहा है? सो उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहे हैं, मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे चिड़िया भी दिख रही है, और क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा और मुझे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, गुरुजी ने कहा, उन्होंने बैठ जाए। ऐसी भीम को बुलाया गया। अब की बार भीम आए, और भीम तो बहुत खाने में और बहुत ही बलशाली थे। सो बेसिकली उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि उठाओ बाण और बताओ क्या दिख रहा है। उन्होंने, भीम ने उठाया बाण और लगाया निशाना और बताया कि मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे आम दिख रहे हैं, मुझे पेड़ दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने पूछा और क्या दिख रहा है? फिर और मुझे बहुत सारे आम दिख रहे हैं। तो मतलब फोकस उनका खाने पर था। द्रोणाचार्य ने कहा जाके बैठ जाओ। फिर अर्जुन को बुलाया गया और अर्जुन को कहा कि उठाओ बाण और लगाओ निशाना और बताओ क्या दिख रहा है। उन्होंने उठाया बाण और लगाया निशाना, तो कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा कि और क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। फिर से गुरुदेव ने पूछा कि और क्या दिख रहा है? उन्होंने फिर से बताया कि मुझे बस
चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। सो गुरुदेव ने कहा जाके बैठ जाओ, और फिर सबको बताया कि ये फोकस चाहिए होता है लाइफ में। अगर एक लाइन देता हूं, बहुत अच्छी लाइन है, कि अगर गोल्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स दिखनी बंद हो जाएंगी, और अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, गोल्स पर या प्रॉब्लम्स पे। Exactly. कहां पर फोकस करना सही रहेगा? गोल पे। गोल पे। और हमको गोल पे फोकस करते हुए जो भी हमारा लाइफ में गोल है, इसलिए मैंने बताया था गोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में, क्योंकि फोकस जब ही बन पाएगा जब हमारे पास गोल होगा। अग्री करते हैं सब लोग? अच्छा, वीडियोस ऑन कर सकते हैं कोई अपना, या मतलब नहीं हो पाने का वीडियोस ऑन का? अगर कोई कंफर्टेबल है सो दे कैन, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है सो नो वरीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या चीज है? ये कोई बताना चाहेगा क्या चीज है ये? ये चीटी है, चीटी। अच्छा, लाइफ में अगर हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम वहां पर रुक जाते हैं, इजंट इट? हमको लगता है यार हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया और हम तो अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। बट चीटी से हम क्या सीख सकते हैं, विच इज कॉल्ड आंट फिलॉसफी। अगर कोई चीटी चल रही है और आप उसके सामने जाके अपना हाथ रख दो, तो वो क्या करेगी? वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। फिर से हाथ रख दो तो फिर से अपना रास्ता चेंज कर लेगी। फिर से उसके आगे हाथ रख दो तो फिर से रास्ता चेंज कर लेगी। चीटी नहीं रुकने की। आप दोबारा से उसके आगे कुछ चीज लगा दो, पेन रख दो उसके आगे, वो उसके ऊपर से चली जाएगी। तो चीटी में कितना फोकस्ड है अपने काम को लेकर, ये हम सीख सकते हैं चीटी से। कि अगर एक चीटी, इतनी छोटी सी चीटी नहीं रुक सकती, तो हम और आप रुक सकते हैं क्या किसी के रोके? अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा डिसमल हो जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। अगर लाइफ में हमारे कोई एग्जाम में नंबर कम आ गए तो हम कितने सैड हो जाते हैं। बट हमको सैड नहीं होना, हमको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमको वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमने कुछ मिस्टेक की होंगी और उससे हमको सीख लेकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइम जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मानते हैं इन सब बात को? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर 5 लाइन्स दैट यू शुड ऑलवेज स्पीक टू योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। कोई पढ़ के बताना चाहेगा ये 5 लाइनें क्या हैं, या 5 जो गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? एनीवन? Yes sir. I am the best. ओके, ग्रेट। I'm the best. I can do it. हम्म, God is always with me. Yes, of course. I am a winner. आई एम अ विनर, ग्रेट। And if I'm winner, then of course today is my day. तो या ग्रेट। सो बेसिकली these are 5 lines. You can take the screenshot as well and you can Yeah. see them every morning whenever you are starting your day. First is I am the best. You have to believe in yourself that yes, I am the best. Don't think कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास ये बाइक नहीं है, मेरे पास वो कार नहीं है, या मैं इतने अच्छी जगह पे नहीं जाता। नो नो नो, you just have to think that I am the best. The things what I am having are the best. So एक कॉन्फिडेंस लेवल खुद बूस्ट अप हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? सेकंड, I can do it. बहुत सारे लोग, अगर मैं कोई चीज, ऐसी चीज करने को कहूं जो वो नहीं कर सकते या उन्होंने आज तक ट्राई नहीं की है, सो वो पहली बार में ही कह देंगे कि मुझसे नहीं हो पाए। अगर कोई एग्जाम है और गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्स है या कोई भी एग्जाम है, आपको उन्हीं से डर लग जाता है कि इतने फॉर्म भर दिए हम, या लोगों ने इतने फॉर्म भर दिए, मेरा तो क्या ही होगा। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यस, आई कैन डू इट। गॉड इज ऑलवेज विद मी। यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि वो भी एक जो पावर है वो भी आपको Yes, sir. कॉन्फिडेंस देगी दैट यस, गॉड इज ऑलवेज विद मी। फोर्थ, आई एम अ विनर। लाइफ में एक और बात बताता हूँ कि अगर लाइफ में कभी सैड लगे या आपको ऐसा लगे हारा हुआ कि यार मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, या कुछ इस टाइप से चीजें हो रही हैं जो मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, या आप अपने आप से पूछें
सो हमेशा जो आपके पास्ट में अच्छी चीजें, या आई कैन से व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन योर पास्ट, आप उसको एक बार रिकॉल करना. ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा दैट आई कांट बी एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स. ओके, कभी भी कोई भी लाइफ है यार, लाइफ में कभी ना कभी तो हमको ऐसा पॉइंट देखना ही पड़ता है जहां पर हम बेस्ट नहीं हो सकते. बट वो वाली सिचुएशन से निकलने के लिए जो आपने पास्ट में अपनी अचीवमेंट्स की हैं, आप ग्रेजुएशन में आपने बहुत अच्छा एक स्कोर किया था, या आपकी कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है, या यू हैव डिजाइन समथिंग, या यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग इन योर लाइफ, तो आपको वो सोचना है. Fifth, the last but not the least, is today is my day. And you always have to think that जो भी है आज है, कल पे don't procrastinate the things in your life. कि मैं ये वाला काम जो है, अगर कोई असाइनमेंट है लाइफ में, तो मैं कल करूंगा. नहीं, आज ही करना है उसको. और टुडे इज माय डे, आज ही मेरा सबसे अच्छा दिन है. कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज whenever we think negative about ourselves, so हमारे ब्रेन में एक ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल लो करते हैं. सो यू डोंट वांट दैट यू शुड बी लेस कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. अच्छा, एक बात और पूछनी थी. जब लोगों के सामने आप इंग्लिश बोलने जाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, या कोई आपको कहता है कि आपको स्टेज पर जाकर कोई स्पीच देनी है, तो डर लगता है? डर लगता है? ये क्वेश्चन है मेरा सबसे, कि डर लगता है आपको? if you can't speak, you can write it as well in the chat box or comment box if you are able to, so I can read from that as well. डर लगता है वैसे सबको जब स्टेज पर कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ स्पीच देनी होती है? ऐसा क्यों होता है वैसे? अच्छा, वी हैव सम चैट्स. अच्छा, यस लगता है, श्वेता को लगता है. ओके, मंजुषा देशमुख को भी लगता है. सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा. सो आर यू रेडी? आप ट्रिक्स जानने के लिए रेडी हैं? यस लिख दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर. और आज के बाद मैं सच बता रहा हूं कि आपको डर नहीं लगेगा कभी भी. जब स्टेज पे जाएंगे तो आपकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती होगी. आई हैव इमेजिन्ड दैट द सिचुएशन व्हाट इट विल बी, है ना? आप सबकी क्या होती होगी, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत टाइम पहले की बात है, मुझको भी बहुत डर लगता था, बट आई हैव ओवरकम अबाउट दिस फियर. एंड जो भी ये हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमको समझ नहीं आता हम क्या बोले, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऐसी चीजें होती है ना? यस लिख दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में. सो विल बी मूविंग फर्दर, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो इसी के बारे में है, दैट 10 टिप्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी. Okay, so many of you are very interested in this, so we'll be starting with these tips and tricks. If you want, you can take the screenshots or you can write it down as well. Okay, so starting with these 10 tips. First, try learning some new words every day. Vocabulary is very important in your life. If you have a word bank, सुना है सबने कि एक वर्ड्स का बैंक है मेरे पास, मेरे को 2000-3000 वर्ड्स आते हैं. सो अगर मेरे पास वोकैबुलरी बहुत सारी होगी, मतलब बहुत सारे वर्ड्स मुझे आते होंगे, सो आई कैन गारंटी यू दैट फ्लुएंसी खुद ब खुद आएगी. बट ब्लैंक आप जब हो जाते हैं जब आपके पास वर्ड्स ही नहीं आते. मैं बोलूं क्या? आपको एक वर्ड आता है, सपोज करो आपको आता है वेरी फास्ट, बस फास्ट, वेरी फास्ट, you will be speaking very fast again and again. But in coming classes I will be helping you out to know all other synonyms of the words. Like suppose you are very hungry, you can say I'm starving. Suppose you want to say that this car is very nice, you can say it is amazing, it is terrific, it is stunning. So these are the synonyms what you can use. But yes, कि मुझे क्या बोलना है, बट अगर वर्ड्स नहीं होंगे. सो अग्री करते हैं इस बात से कि यस. हेलो, एम आई ऑडिबल? sir, Yeah. Am I audible? For a short while you are not audible. So now am I audible? Yeah. So basically you should have word banks.
लाइक वर्ड का बैंक होना चाहिए आपके पास, जो भी आपको लगे, जो भी सिचुएशन है उसमें से निकाल के हमने प्रेजेंट कर दिया. सो फर्स्ट इज vocabulary. Try learning some new words. I will be helping you out with all the synonyms in coming classes. Okay. Second, sir. don't be afraid of making mistakes. अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए कि ऐसा कौन इंसान है जो गलतियां नहीं करता? हर कोई गलतियां करता है, isn't it? Yes. सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड. अगर आपके फ्रेंड्स आप पर हंसते हैं ना कि यार ये कैसे इंग्लिश बोलता है, ये कैसा बोलता है, ये डरता है, डोंट फील दैट वे कि मुझे नहीं आता. बी fearless कि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो नो वरीज, मैं गलतियों से ही सीखूंगा. ये आपके बैक ऑफ योर माइंड में होना चाहिए. समझते हैं? और गलतियां करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां जितनी कर सकते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप स्टेज पे जाइए, आपने गलत वर्ड बोल दिए या ऐसा आपसे नहीं बोला गया, नो वरीज, मगर you should always take the initiative to speak. Okay. Third, make an effort to improve your pronunciation. Pronunciation is very important. अच्छा, एक बात बताइए, जो बहुत अच्छा प्रोनाउंस करता है अपने वर्ड्स को, ठीक है? अच्छा, एक सबसे पूछना चाहूंगा कि ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है वीक डेज में? Wednesday. कौन सा? Wednesday. 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 वेडनेसडे, ठीक है. Wednesday. ओके ओके, who said this? Yes, sir. What's your name? Yes, sir. Nilesh. Wednesday, second girl, some Manjusha. no, some girl said this. Manjusha. Okay, great. So basically, this is the difference. If you're saying Wednesday, it will not make an impact. But if you're saying Wednesday, in the same way, you don't have to say January. What you have to say? What you have to say? January. Anyone? January. January, February, March, April. So these are the words. What you should always know that how to pronounce. But I can guarantee you that if you will be using normal words, but your pronunciation is very good about like in those words, your speech will become very amazing, very stunning. Why? Because each and every word in English language is having some rhythm. अगर आप रिदम में बोलेंगे ना उसको, सो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको एक तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे सबके साथ. ठीक है? सो फॉर दिस आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. फॉर दैट आई हैव सेवरल वीडियोस टू शो दैट हाउ नेटिव स्पीकर स्पीक. नेटिव स्पीकर समझते हैं सब, जो फॉरेनर्स होते हैं वो किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को. दैट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन कमिंग क्लासेस. ओके. थर्ड, like fourth, we have retell a story in English. So this is basically, आप वेब सीरीज देखते हैं सब लोग, मूवी देखते हैं सब लोग. हेलो, Yes. Yes, sir. मूवी देखते हैं. अच्छा, Yes. कभी आपने ऐसा ट्राई किया है कि आपने कोई मूवी देखी, कोई वेब सीरीज देखी, और जब वो वेब सीरीज खत्म हो गई तो उसकी जो पूरी स्टोरी थी वो आपने इंग्लिश में अपने मन में रिपीट करी हो? आई थिंक नहीं किया हो. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जो भी वर्ड्स पूरी मूवी में, इररिस्पेक्टिव वो मूवी हिंदी की है या इंग्लिश की है, बट if you are repeating all the instances, like all the incidents, what happened in that web series or in that movie in English language in small sentences, slowly and gradually your spoken English will increase, your fluency will increase. So what you will be doing, so you are taking the screenshots of these tips, Yes, sir. everyone? Yeah. Hello, everyone is taking the screenshots? Sir, can you see again a second number screenshot? This one second. Second one. This one. Yes, yes. Yeah, please take the screenshot or you can write it down. So these tips will really help you out, and I will be helping you to improve your communication skills, because I can guarantee you that if you are doing any courses, if you are into any institute, but if you don't know how to speak in English language and how to be fluent, no one will entertain you. No one will give you that level of job in their company, because communication skills is very important. You all agree? एक बार yes लिख दीजिए comment box में.
then we'll be moving further with other tips and tricks. Chat में yes लिख दीजिए सब एक बार. Yes, sir. Great. So this is first slide, second slide, third slide. Try saying something extra. आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, so आप yes या no में आंसर देके निकल जाते हैं, isn't it? What is your name? आपने नेम बताया, बस खत्म. Please don't frame your answers in one word. Try saying something extra. अगर मेरे को बहुत अच्छी बात लगी आप सब में कि जब मैंने आपसे इंट्रो पूछा, आपने बस अपना खाली नाम नहीं बताया, आपने बताया कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन से कोर्स में हूँ, मेरा नाम ये है. सो यू हैव टू से एक्स्ट्रा बोलने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी. Sir. हेलो, या प्लीज. Sir, was I audible when I gave my introduction? Yeah, you were audible. Okay, thank you, sir. Yeah, no worries. And if you have any sort of questions, we can take in at the like ending of this seminar, and I'll be giving you 10-15 minutes to discuss what are your issues, what you are facing, and how we can overcome this. Okay, everyone. So next, become a part of a conversation group. So conversation, you should always do in a great group, because if all the people are introvert, so they will not speak, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे. But if you really want to improve your communication skills, you have to be in that group. जैसे हमारा group है, that will be starting this, कि हम speak करना start करेंगे, बोलना start करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. इससे क्या होगा, हमारी knowledge भी increase होगी और हमको बोलने की practice भी होगी. You all are with me, isn't it? Yes, sir. Okay. So next, try thinking in English language. आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, या मैं थोड़ी देर वेट करूंगी स्क्रीन पर? If someone is writing, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? एक बार yes लिख दीजिए. ठीक है, ओके, ग्रेट. सो मैं आगे जो स्लाइड है वो है ट्राई थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत सारे स्पीकर, ट्रेनर्स, कोचेस बोलते हैं कि इंग्लिश में सोचो, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज. बोलते हैं नहीं बोलते हैं? Yes. आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी आई थिंक यूट्यूब पर, और बहुत सारे कोर्सेज भी आपने देखे होंगे कि ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड योर इंग्लिश लैंग्वेज, योर फ्लुएंसी विल बी अमेजिंग. होता है ऐसा? होता है ऐसा एवरीवन? सो Yes, sir. हाँ, तो मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में सोचना कैसे है. सब लोग ये तो बताते हैं कि इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में सोचो, बट इंग्लिश में सोचना है वो कैसे सोचना है? आपकी डेली रूटीन में जो भी चीजें आपके पास है, मींस पंखा नहीं है वो फैन है, कुर्सी नहीं है वो चेयर है, ठीक है, किताबें नहीं है बुक्स है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जो भी आपको इंग्लिश में आता है, आप उसको हिंदी से रिप्लेस करके इंग्लिश में कर दीजिए, जो भी आपको आता है. धीरे धीरे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द वर्ड्स, ऑल द वोकैबुलरी, बट जितना, जैसे दीवार नहीं है, आपको आज से बोलना है वॉल, ठीक है, पानी नहीं बोलना, वाटर बोलना है. क्या बोलना है? वाटर, ठीक है. धीरे धीरे जब आप वर्ड्स को इंग्लिश में प्रोनाउंस करना स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे वर्ड्स को धीरे धीरे, देन यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. पानी दे दो, ये मत बोलो पानी दे दो, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस है वो डे टू डे लाइफ में चल रही है, और दूसरी बात आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी. बहुत सारी चीजें आपको पता, जैसे कुंडी होती है, ठीक है, दरवाजे में कुंडी होती है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी मैं आपकी एक वोकैबुलरी जो वर्ड है वो बढ़वाता हूँ, जल्दी बताइए. एनीवन? Latch. लैच. हु इज दिस? लाइक श्वेता? Yes, sir. ग्रेट, अमेजिंग. सो लैच कहते हैं उसको. सच सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किस किस को पता था जो कुंडी होती है दरवाजे में उसको लैच कहते हैं?
I know that many of you don't know this, isn't it? Yes, sir. सबको नहीं पता था ना, बट श्वेता को पता था. इससे क्या होता है? Sir, actually, I know it is, but in Marathi, actually, it is said in kadi. So कड़ी that's why I confused. That's why I I know confused. Yeah. Okay, no worries. So basically, मेरा जो point है वो यही है. If we'll be speaking in group, a conversational group we have joined, so हमारी vocabulary भी increase हो. समझते हैं इतनी बात को? Next, Yes, sir. have confidence whenever or whatever you are speaking. अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आपसे गलत चीज, मतलब गलत इन द सेंस कोई ऐसी चीज झूठ बोल रहा है, बट वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, और मोर ओवर ही स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो आपको लगने लगेगा यार सही है, सही बोल रहा है. क्यों? हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. और लाइफ में भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि किसी को पता ही ना लग पाए कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है. सच बोलो, आई एम नॉट सेइंग दैट झूठ बोलो, बट यस, you should always have this much of confidence within yourself that yes, what I am saying is right and absolutely correct according to me. मैं मानता हूं ये वाली बात कि गलत भी हो सकता है, but yes, according to me it is absolutely correct. Correct. Okay, great. Next, Great. just learn to listen better. अगर हम लाइफ में कुछ बोल रहे हैं ना, मैं आपको बहुत एक अच्छा फैक्ट बताता हूं कि इफ वी आर स्पीकिंग, तो हम बस वो ही रिपीट कर रहे हैं जो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ऑलरेडी पता है. समझते हैं इस बात को? हम बस वो ही रिपीट कर रहे हैं. बट इफ वी आर लिसनिंग, इट मीन्स वी आर लर्निंग. सो इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, you have to become a better listener first. Ola with me. एक बार chat yes लिख दीजिए कि yes, listening skills are very important in your life if you want to become a better communicator in life, isn't it? Yes, sir. So next, master some specific phrases and English idioms. अच्छा, कहावतें सबको पता है. मैं एक पूछता हूं, देखते हैं किसको पता है किसको नहीं पता. ठीक है? अच्छा, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है, एक सेकेंड. या इंग्लिश इडियम्स विल बी स्टार्टिंग विद. कौन पढ़ के बताएगा क्या लिखा है? घर का भेदी लंका ढाए. हाँ, अच्छा, किसी को इसका मतलब मीनिंग पता है? हिंदी या इंग्लिश, नो वरीज, या अपनी लैंग्वेज में भी किसी को इसका मतलब पता है? घर का भेदी मीन्स जो the one who split the home, I think. Is it the one who split the home? And but I'm not getting the meaning of the last word, ढाए. So अच्छा, what is meaning of ढाए? मैं सब बताऊंगा. पहले और लोगों को चांस मिलता है, देते हैं कि और बताइए किसको पता है इस जो इडियम है इसका मीनिंग क्या है? घर का भेदी लंका ढाए. Sir, I'm trying, sir. I'm trying. Either damage. The one. Yeah, one by one you can try, and we have some. Okay, the one who grouped the or who split the home, who should to whom sent to Lanka, I think. क्या? अच्छा, किसको पता है मीनिंग इसका? मैं सही, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, बट जो प्रॉपर इसका मीनिंग है वो क्या है? किसी को पता है? हेलो. Yes, hello, ma'am, you try. किसी को पता है? An insider does the maximum damage, right? Yeah, great, amazing. So this is the हिंदी वर्जन, बट मैं आपको वो इंग्लिश वर्जन, पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ. जैसे सपोज आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, और आपकी कोई बात उसको ऐसी पता है जो सीक्रेट है, ठीक है. Spoils the home should go to Lanka. नहीं, ऐसा नहीं है. घर का भेदी लंका ढाए बेसिकली कोई आपको डिच करता है जब, जैसे किसी ने,
तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपके फ्रेंड को पता था, जो सीक्रेट आपके फ्रेंड को पता था, वो कहीं और जाके बता देता है, और उस वजह से जो आपकी डिफीट है, जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा, तो विभीषण वाज घर का बेदी लंका ढाए, isn't it? सो इसको इंग्लिश में कहते हैं एन इनसाइडर डज द मैक्सिमम डैमेज। ओके, सो नेक्स्ट एक और मैं बताता हूं आपको तो एक ही पता था, इनसाइडर डज द मैक्सिमम डैमेज। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। अगर छोटा सा भी एक छेद भी हो जाए ना एक बहुत बड़े जहाज में, तो वो उसको भी डुबा देता है। ठीक है, ठीक है। Yeah. So, Yes, sir. okay, समझ गया, आई थिंक आप समझ गए हो गया इसका मीनिंग। अच्छा, इसका मीनिंग किसी को पता है? भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब किसी काम का नहीं। जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, समझा आपके कोई फायदा नहीं है, राइट? हाँ या करेक्ट, एकदम राइट, एकदम करेक्ट। हाँ, समझाए कोई फायदा नहीं है। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। दिस विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी एज वेल एज योर लेवल ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप इन चीजों को क्रैम कर लेंगे, सपोज आपको ये नहीं कहना कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो हिंदी में आप कहेंगे इट्स नो यूज कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। ओके, नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब एक मुसीबत तो थी पहले से। अच्छा, किसी को पता है वैसे इसका मीनिंग? Yes, sir. आगे अच्छा, क्या means in your in front of there is a well, and your at your back there is a what do you say? डीप सी? Yeah. Around दोनों जगह से प्रॉब्लम है, चाहे ये करूँ या चाहे वो करूँ, तकलीफ तो होनी ही है। या एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मैं इसकी इंग्लिश किसी को आती है क्या? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो हमारा चैलेंज है। बट आई मस्ट से दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, कि आपको ये सारी जो कहावतें हैं, इडियम्स हैं, ये सब आपको पता है ना। इंग्लिश जो सिखानी है वो मैं सिखा दूंगा, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए था। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ओके, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ से फंस गए यार, मैं क्या करते हैं अब। ठीक है, मतलब जैसे एक बात और है कि दोनों तरफ से कैसे फंसते हैं, ना तो हमारे पास कोई अच्छी डिग्री है, ठीक है, और ना हमको इंग्लिश बोलनी आती है, हम तो दोनों तरफ से फंस गए यार। सो आगे कुआं पीछे खाई, सो अब नहीं फंसेंगे आप, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? टाइम निकल गया, अभी कोई फायदा नहीं है। Yeah. ग्रेट। अब मतलब अब पछताने से क्या फायदा, जब तो टाइम निकल गया, जब आपको मेहनत करनी थी। दिस इज द हाई टाइम टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। यू ऑल आर इनटू दिस लर्निंग फेज, और अब आप लाइफ में जॉब की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल फेज है इंग्लिश सीखने का। बाद में मत पछताइएगा फिर कि यार मैं उस टाइम इंग्लिश सीख लेता, या मुझे इंग्लिश बोलनी आती तो यार आज मेरी लाइफ कुछ और होती। समझते हैं इतनी बात को? सो इसको इंग्लिश में कहते हैं, लिख लीजिएगा, नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, अच्छा, कोई रिपीट करके बताना चाहेगा मुझको अपने स्टाइल में, अच्छे से प्रोनाउंस करके बताना चाहेगा क्या लिखा है इंग्लिश में? एनीवन? और वी ऑल कैन ट्राई। एक बात हो, No use of crying over split milk. No use of crying over split milk. okay, great, amazing. Next person please. Great, like you all are so well versed with English language. What you want, आपको क्या चाहिए? बस आपको एक थोड़ी सी पॉलिश अगर हो जाए इंग्लिश पर, तो I can guarantee you that you will start speaking English language, nothing like anything. You all have this confidence within yourself कि yes, I can speak in English language. एक बार yes लिख दीजिए चैट में, Yes. तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, कि सबके पास इतना कॉन्फिडेंस तो है that if I'll be helping you out, so I also want your output, like your input as well, for the great output. Okay, yes I will. Great, yes, okay. और लोग भी लिख दीजिए प्लीज। okay, great. So आगे चलते हैं। I think many of you have joined late, है ना? So इस वजह से थोड़ा मतलब आपको समझ नहीं आएगा, बट yes, I'll be helping you out with this. अच्छा, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ये तो बहुत फेमस है, सबने सुना होगा, नहीं सुना क्या?
Yes. सबने सुना है ना? अच्छा, Yes, इंग्लिश में क्या sir. कहते हैं इसको? कौन बताना चाहेगा इंग्लिश में क्या कहते हैं? Hmm. Who never want to change हाँ, anything. मतलब मीनिंग तो वही है कि मतलब कितना ही समझा लो मगर वो चेंज नहीं होगा। बहुत सही बताया, बट इसको इंग्लिश में कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से, अ डॉग्स टेल इज ऑलवेज क्रुक्ड। कौन पढ़ के बताना चाहेगा इंग्लिश में क्या लिखा है? एक बार बोल के बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, और मुझे A लगेगा dog's कि tail सारी is always crooked. A dog's tail is always crooked. Okay, great. Next, there are 11 people, 10 people in this room. सब एक एक बार अगर थोड़ा सा मुझे बता देते कि कौन सा आपका लेवल है प्रोनाउंसिएशन का, how you A dog's okay. A dog's tail is always crooked. Great. Next. Next. Anyone? A dog's Yeah. tail is always crooked. Yeah, great. Next. और Dog's tail. बस चलो, नो वरीज, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दिस कि भाई आपको प्रोनाउंसिएशन के मैं आपको बता देता हूं दैट व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट आर दोज कंटेंट्स व्हाट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद द वोकैबुलरी। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि जो भी वर्ड आपके सामने आए ऐसा ना हो आपको उसका मीनिंग समझ ना आए या पता ना हो। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दैट। सेकंड, ग्रामर, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। थर्ड इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। फोर्थ is your pronunciation. Fifth is your grooming. Okay. Sixth is your interview skills. Seventh is your what are those questions which will be asked in your interview. I will be helping you out with that as well. And last but not the least, which is public speaking, that whenever you are standing in front of people, how you have to present yourself. So these are the things, these are contents which I'll be taking care of. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Problems are the sign of life. Signs of life. समझते हैं? अच्छा, ये क्या चीज है? मसाला चाय है ना? क्या ये? Yeah. अच्छा, टी। ये तो सबकी फेवरेट होती है आई थिंक, Yeah. है ना? अच्छा, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो चाय के ऊपर जो एक मलाई जम जाती है ना, जब हम बहुत टाइम तक उसको रख देते हैं, बस उतनी ही होती है लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है। और आपको ये नहीं सोचना यार लाइफ अब ऐसे थोड़ी करते हैं आप कि मैं चाय पी रहा था, मेरा एक कॉल आ गया और उसके बाद ये मलाई आ गई, अब मैं क्या करूं? अरे फूक मारो, मलाई हटाओ, चाय पियो। ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को साइड करो, लाइफ में आगे बढ़ो। करेंगे ना? आप तो नहीं डरेंगे ना किसी चीज से? Yes, sir. बस। Yes. So Sir. that's all. Thank you so much for your time कि आपने मतलब इतना इंटरेक्टिव सेशन बनाया इसको, ठीक है? एंड थैंक्स टू IIBM that who has given me this opportunity so that I can help you out and I can reach to you that जो भी आपकी problems हैं या जो आपकी queries हैं which I can help you out with them, and in near future you can increase your level of fluency and level of confidence within your life. This will really help you a lot.